Hello everyone, welcome back to this channel. Here it is your moral subject, chapter number 2, Jessica's challenge. The value of this chapter is the power of determination. Okay, determination it means to form decisions. Form decisions यानी किसी चीज़ के लिए decision लेना. Okay, और firmness of purpose, a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Okay, see now, dear students, everyone has ups and downs in life and it is the part of our life. So it is important to face our difficulties and trying or taking them as challenge, and we must understood that everything can't be easy. यानी कुछ भी easy तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें challenges face करने ही पड़ते हैं. Now here we have listened about the Jessica Cox. See in this picture, the name of this girl is Jessica Cox. Okay, now see, she is a disabled or a handicapped person. Nowadays we can say a special child. Okay, so students, how do you react when you see a physically disabled person? Some many feel pity or some many feel hate. But students, we shouldn't hate by seeing this type of persons. You know what? In fact, we should always help them. Do you think a disabled person beat a normal life? Ever you think? No, it is very difficult to them. But yes, my dear students, they also can lead a normal life with the power of determination. If you try or your determination is firm, you can achieve something which is beyond your normal capacity. Okay, so we have this lesson about a physically disabled person, Jessica Cox. Now here we have the chapter, as you can see here in this picture. Okay, the mother and the father or a daughter. Now we will start this chapter. Jessica Cox was born without the arms to an American father and Filipino mother in Arizona, America. Okay, Arizona, it's a place which is located in America. Okay, now Jessica's father William Cox was a retired band teacher and mother Ines Cox was a nurse. Jessica learned to do things with her feet what other children learn to do with their hands. इन दिस पैराग्राफ जेसिका कॉक्स जो थी वो कहाँ पर पैदा हुई थी, वो एरिज़ोना के अमेरिका के एरिज़ोना जगह की रहने वाली है. ठीक है, उनके फादर जो है वो अमेरिकन है और उनकी जो मदर है वो क्या है, फिलिपिनो है. द नेम हिज फादर वॉज अ बैंड टीचर एंड अ मदर इनेस कॉक्स वॉज अ नर्स. उनकी मम्मी जो रहती है वो नर्स रहती हैं. ठीक है, और उनके जो फादर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो एक बैंड टीचर रहते हैं. But the child, whose name is Jessica Cox, she was born without the arms. उसके arms नहीं होते हैं. It means the both hands. Okay, she is without her hands. And Jessica learned to do things with her feet. और इसीलिए वो अपनी सारी चीज़ें अपने पैरों से करना सीखती है. Okay, जबकि other children जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो hands से सीखते हैं. Now, by the time she was 3, Jessica was enrolled in gymnastic classes. By the time she was 6, she was swimming in the backyard pool and tapping out rhythms in dance classes. यानी जब वो 3 साल की थी तो उसने अपना एनरोलमेंट करा लिया था किसमें, जिम्नास्टिक क्लासेस में. और जब वो 6 साल की हुई तो उसने क्या क्लासेस कौन सी स्टार्ट कर दी थी, स्विमिंग क्लासेस, बैकयार्ड पूल एंड टैपिंग आउट द रिदम्स इन द डांस क्लासेस ऑल्सो. एंड शी ऑल्सो ज्वाइन द डांस क्लासेस. ओके, टैप डांसिंग. Now, she looks a part in various activities such as the gymnastic and tap dancing, often performing on stage. यानी वो अब क्या करने लगी थी, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी थी. ओके, she has participated in all activities and often performing on a stage also. Now, for Jessica, the greater challenge of being born without arms was the constant stares rather than the physical adversity. Here the meaning is adversity means the misfortune. Okay, यानी दुर्भाग्यवश जिसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, which is unfortunate. Okay,
Now here, for Jessica, the greater challenges of being born without arms was the constant stares rather than the physical adversity. She says, I used to get very irritated when people stared, especially when I am walking down the street or eating the food or eating with my feet. Okay, but I've learned to turn that into something positive and use it as an opportunity to be an example of optimism. Now in this paragraph, जेसिका जो थी उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, बट द बीइंग बॉर्न विदाउट द आर्म्स, क्योंकि उसके आर्म्स नहीं थे, वो जब पैदा हुई थी तो उसके दोनों हाथ नहीं थे, सो बट ऑब्वियस है कि उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी. बट द कांस्टेंट स्टेयर्स, यानी लगातार उसको जो घूरने वाली एक्टिविटीज करते थे लोग, उससे उसे बहुत दिक्कत होती है. ओके, फिजिकली एडवर्सिटी, एज आई टोल्ड यू दैट द मीनिंग इज मिसफॉर्च्यून. ओके, सो शी सेज आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड, और इसी वजह से वो इतनी इरिटेटेड हो जाती थी, स्पेशली तब जब वो या तो किसी सड़क पे जा रही होती थी या फिर अपने पैरों से कुछ खा रही होती थी. तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो क्या करते हैं, स्टेयरिंग करते हैं. स्टेयरिंग इट मीन्स गेजिंग, घूरना. ओके, बट आई हैव लर्न टू, बट शी सेड दैट शी हैड लर्न टू दैट समथिंग पॉजिटिव. लेकिन उसने इन सारी डिफिकल्टीज में से, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में से भी कुछ पॉजिटिविटी ही अडॉप्ट की थी. ओके, एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और उसने उसे क्या समझ लिया था, एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा. एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म. एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना. ओके, व्हेन यू आर होपफुल फॉर समथिंग, व्हेन यू वांट टू अचीव. ओके, हियर आई हैव अनदर पेज. Okay, my dear students, now we will learn more about Jessica Cox. So now, Jessica admits that earlier she was quite shy when she was with other children and adults. I used to feel shy about being different, and I remember the time I was on stage. It was my first dance presentation. I was so scared that I asked my dance teacher to put me in the back row. She told me there was no back row. Fortunately, after the show, the audience clapped and cheered for her, and I couldn't wait to go out for a second time and perform. I danced for 12 years after that, she said. जेसिका ने क्या बताया था, दैट शी वॉज क्वाइट शाई. वो पहले कैसी थी, वो बहुत ही शर्मीली टाइप की थी. व्हेन शी वॉज विद द अदर चिल्ड्रेन और द एडल्ट्स, यानी जब वो किसी और लोगों के साथ होती थी, किसी और बच्चों के साथ होती थी या बड़ों के साथ होती थी, तो देन शी वॉज क्वाइट शाई टाइप ऑफ अ पर्सन. सो शी एडमिटेड दैट आई यूज टू फील शाई अबाउट बीइंग डिफरेंट. उसे बहुत शर्म आती थी क्योंकि वो सबसे डिफरेंट थी. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी. एंड आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट टाइम, यानी उसने बताया कि मुझे याद है वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, कि जब मैं स्टेज पे थी, इट वाज माय फर्स्ट डांस प्रेजेंटेशन. तो मेरी पहली डांस प्रेजेंटेशन थी, एंड उस टाइम मैं इतनी स्केयर्ड थी कि मैंने अपने टीचर से क्या बोला, दैट यू जस्ट पुट मी इन अ बैक रो, कि आप मुझे पीछे खड़ा कर दीजिए, इन फ्रंट पे मत खड़ा करिए. बट शी टोल्ड मी, यानी उसकी जो टीचर थी उसने उसे क्या बताया, द टीचर टोल्ड हर दैट देयर वाज नो बैक रो, कि वहाँ पर कोई भी बैक रो नहीं है. सो फॉर्चुनेटली आफ्टर द शो द ऑडियंस क्लैप्ड एंड चीयर्ड फॉर हर. और जब शो ख़त्म हुआ तो जो वहाँ की ऑडियंस थी उसने क्या किया, उसे बहुत चीयर अप किया और उन सब ने क्लैप्ड किया. आई couldn't wait to go out for a second time and perform. और वो अब क्योंकि वो इतनी कह सकते हैं हम मोटिवेट हो गई थी कि उसे सेकेंड टाइम स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत मन था, और जिसकी वजह से वो वेट नहीं कर पा रही थी. सो आई डांस फॉर 12 years आफ्टर दैट. वो 12 सालों तक उसने मतलब अपने डांस प्रेजेंटेशन देना और डांस परफॉर्मेंस करना, उसने 12 साल तक ये सब काम किया है. शी सेड दैट. ओके, now Jessica credits her parents for being her role model and a pillar of support. My mother is my role model, and she always tells me that I could do anything I have set my mind to. And my dad never once shed a tear when I was born, because she did not see me as a victim
It is hard being a parent to a disabled child. He was my rock during the difficult times, and that has shaped me into the person I am today, she said. जेसिका बताती है कि उसके जो रोल मॉडल हैं वो कौन है. उसके रोल मॉडल्स उसके पेरेंट्स हैं. ओके, दैट्स व्हाई शी ऑलवेज obey them or adore them. okay, and उसने ये भी बताया that उसकी जो मदर है वो हमेशा उसे हेल्प करती हैं whenever she set a mind to do something. okay, उनके फादर जब वो पैदा हुई थी तो वो बिल्कुल भी नहीं रोए थे. okay, and he did not see me as a victim. Victim here, the meaning is victim, it means just like a person who is hunted by her disability or any unfortunate things. okay, तो उसकी डिसेबिलिटी को देख करके उसके फादर क्या हो गए थे, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुए थे. ओके, और वो बिल्कुल भी ऐसा गिल्टी नहीं फील कर रहा था, ना ही रो रहा था कि मुझे मतलब कैसा चाइल्ड उनको मिला है जो डिसेबिलिटी की वजह से कुछ कर नहीं पाएगा. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ हार्ड बीइंग अ पेरेंट टू अ डिसेबल्ड चाइल्ड, जो कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी डिसेबल्ड चाइल्ड का पेरेंट होना. बट इन स्पाइट ऑफ दिस he was my rock during the difficulties time. लेकिन उसने ये मेंशन किया कि वो फिर भी मुझे हर टाइम पे हर सिचुएशन और कंडीशन में हेल्प करते हैं, एंड दैट शी शेप्ड मी इनटू द पर्सन, और उन्होंने ही मुझे ऐसा पर्सन बनाया है who I am today. okay, now listen, next paragraph. She actively participated in taekwondo, swimming, and even learned how to drive. When she first learned to drive a car, she was encouraged to use special modifications. However, after she had her car modified and she decided to remove the modifications, she now holds an unrestricted, she now holds an unrestricted driver's license. Jessica said that it's like riding a bike, and I slouch back in the driver's seat and control everything including the steering wheels using my feet. जेसिका बताती हैं कि उन्होंने हर तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जस्ट लाइक अ taekwondo. In Hindi we can say a taekwondo, okay, but in English it's a taekwondo. Now, and swimming or even learned how to drive. यहाँ तक कि उसने ड्राइविंग भी सीखी हुई थी. ओके, सो जब वो उसने पहली बार ड्राइविंग सीखी थी, देन शी वॉज एनकरेज्ड टू यूज़ द मॉडिफिकेशंस. तो उसने क्या किया था, अपने कार में कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी उसे. बट हाउएवर आफ्टर शी हैड हर कार मॉडिफाइड, लेकिन जब उसकी कार मॉडिफाइड हो गई, शी डिसाइडेड टू रिमूव द मॉडिफिकेशंस. तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो इन मॉडिफिकेशंस को हटा देगी, जस्ट बिकॉज शी ईजिली कैन ड्राइव. ओके, एंड she holds the unrestricted यानी अनरिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर लाइसेंस. कुछ ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जो कुछ लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. सो she got that license also. okay, and Jessica said that it's riding a bike. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बाइक चलाना. Slouch, here the word is slouch it means a bend. ठीक है, झुकना, बो डाउन करना. ठीक. So now I slouch back in her driver's seat. वो ड्राइवर सीट को पीछे करती है, and then control everything including the steerings and wheels by using her feet. वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके सब कुछ कंट्रोल कर लेती थी, स्टीयरिंग को भी, व्हील्स को भी. ओके, now at the age of 14, Jessica earned the first black belt in taekwondo and received a second one after she rejoined the American Taekwondo Association later in college. यानी उसने फर्स्ट ब्लैक बेल्ट जीती थी जब उसने टाइकोंडो में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, एट द एज ऑफ 14. और फिर उसने सेकंड ब्लैक बेल्ट भी जीती जब उसने रीजॉइंड किया द अमेरिकन टाइकोंडो एसोसिएशन. ओके, लेटर इन कॉलेज. नाउ आफ्टर हाई स्कूल, Jessica attended a college at University of Arizona and earning a bachelor's degree in psychology. तो हाई स्कूल के बाद उसने कहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, एरिजोना की यूनिवर्सिटी में. ओके, एंड फ्रॉम वेयर, जहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से उसने अपनी साइकोलॉजी से बैचलर्स डिग्री को कलेक्ट किया. ओके, बैचलर्स डिग्री. टुडे शी कुक्स, ईट्स, वॉशेस डिशेस, यूजेस द कंप्यूटर, curls her own hair and writes and types with her feet.
यानी आज वो खाना भी बना सकती है, ठीक है, खाना बनाना, खाना, बर्तन धोना, और यूजेस द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को भी चलाना, और फिर अपने खुद के बालों को कर्ल करना, एंड राइट और टाइप्स इवन, और वो राइटिंग एंड टाइपिंग सब कुछ अपने फीट से कर रही थी. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू रीड टिल हियर नाउ and we will discuss further our chapter in our next class. Okay, so thank you everyone.